introduction for you, Pranav. So my name is Pranav Singh. I have completed my school from Dhanbad, ISM Center, and after that I completed my graduation from LNCP Bhopal in pharmaceutical science, and after that I have completed 1.5 year in as a marketing in pharmaceutical company Walter and Bushner. Okay. Last 5 years I am preparing for civil services exam. I see a lot of diversity of pharmaceutical, B Pharma. Now you know that it is a time of COVID when we are searching for medical staffs. You could have added much value there. Why you are coming to administration then? So COVID is a present situation, and when I am shifting my, and it's not one day situation where I am focused on civil services. It's from schooling time I am focusing on civil services paper or what patterns are going on. But after completing my graduation in pharmaceutical science, I am thinking about high level education, but I am not capable of doing in research or any master in pharmaceutical. But As a B Pharma, how you are going to contribute in administration? sir, it's present time health infrastructure is the core issue for dealing with the COVID pandemic. And what I have learned in graduation, what I have done in 4-year degree program, this play important role to boost our infrastructure in health, how we deal with our drug system, how we can go for generic drugs. Generic is one of the more core issue for dealing with. What is the major difference between the generic drug and the basic drug? The generic drug is simple. We can say that it is the same type of drug that we are using as a branded drug. But after completing patent of 20 years, Is there any difference between the No, sir, no. efficacy? no, there is not any research and not any data is coming that we can say that the efficacy is less than from branded drug. Okay. Have you heard about Covishield? Yes, sir. Which is the manufacturing institute of Covishield? It's manufactured in India, Serum Institute, Pune. Serum Institute, Pune. Okay. There, being a pharma candidate, there is something. Have you heard polysprobate in polysprobate 80 in Covishield? What is the basic purpose of this? No, sir. Hydrochloroquine. Yes, Have sir. you heard about this drug? It was very much in news during the Yes, time sir. of COVID. Why? Sir, it's in emergency time. This drug is used for giving to COVID patient. If at that time there is no any vaccine or drug is available, we see that hydrochloroquine is used in a SARS-CoV in African region as emergency for curing to lower down the temperature in the body and to control the infection. And Remdesivir was also in news. Yes, sir. Why everybody was preferring Remdesivir? What was the major role the drug was playing during COVID-19? Sir, it's directly attacked to the virus, the spike protein, to control the replication of virus, to control So or it- inhibit the RNA transcription. It is also related something to the lungs. Yes, sir. It's control the what happened in the COVID. The lungs are more damaged and more infected. It directly control. It's attacked to the inhibitor of the lung site where it's control the lungs infection. And what is a malignant virus? Sorry, sir. Malignant virus. Malignant. Sorry. Okay, fine. And you said that you graduated from ISM Dhanbad. Yes, sir. ISM Dhanbad is famous for one study, which is Coal mining engineering. coal mining and engineering. Okay. You belong to Samastipur. Yes, sir. Have you heard about Lal Koti Lal Koti. in Samastipur? Sorry, sir. You are not aware of it. Hobbies are your So, tennis. yes, sir. Tennis. So what is the major difference between an Australian Open and the US Open? It's a major difference is our court, Both are hard court only. hard court. But not our court synthetic. One is synthetic hard court. There is one major difference between. Both are Grand Slam and I The first slam is the Australian Open, and the last slam is US Open. Last slam of the season is. if we that talk is about the- season. okay, fine. Now coming, have you heard about the recent World Cup Test match? Yes, sir. What was the outcome? New Zealand won the World Cup. How many? What was the
Give me the exact what happened in the final. Overall, 5 days. All final. The final outcome of the test. I haven't seen the full match, but only I have heard the result that New Zealand won the World Test Championship. New Zealand won by 8 wickets. But I've seen the match. Okay. Only see the only one. You have opted for Bihar Administrative Service as your first option, Yes. right? Why? So it's not about my choosing. If I'm going for Yes. if we're going for my Your preference here. yeah, but it's not about my choosing that if I selected. Here you have Yeah. here you have written BS your first preference. Yes, sir. It is your choice. Yes, sir. You may get it, you may not. Yes. That is another issue. Yes, sir. But you have here opted for Yes, sir. BS as first preference. What is the major reason behind mentioning it as a first preference? I think Bihar Administrative Service one of the crucial role played in society as a handholder to the society underprivileged. BS doesn't play. Yes, but administrator have a crucial role. We can say that police administration, police services mainly for law and order, to control law and order. What are the major things which attract you in BS? Personally, I am not looking for that major attraction coming from BS, but I've seen from civil servant, I've always opting for BS. My preference is for BS to go for BS. Okay. PSR is your optional paper. Yes, sir. Have you heard about QUAD? Yes, sir. So what is the major objective behind setting up of QUAD? So, major objective I can say that to check the hegemony of China in Asia. It's also to deal, it's a US policy, Asia private policy to counter China, taking support from India, Australia, Japan to counter South China Sea, the hegemony and the geopolitics of China to control and curb, where India played crucial role in Kuwait as well as from other countries. India and US have built this mainly form this quadrilateral to control the hegemony. It is said that China war is nothing but a trade war. Why? Sorry, sir. It is being said that the war against China is not a Chinese war but a trade war. Why? Sir, it's going between US and China to control. Why trade has been associated with China war? Because China always protective in nature. In its domestic affairs, also in domestic business. Trade, the tag of trade has been given to this war. What Yes, is the sir. major reason behind giving it a trade war? So both of us, the US and China, have given to control its domestic affairs, to increase its export and curb the import, to enhance its employment and. Okay, fine. My last question to you is that I see diversity in your education qualification, Yes. right? In B Pharma also you have accelerated the field by doing M Pharma and then again you wait for higher degrees. But you have opted as administration. Few things as an administrator you will do because you have knowledge of B Pharma and we are facing a situation of COVID. What you can give as a better which others cannot give as a B Pharma candidate or administrative candidate. So basically, in this present scenario, to boost the health infrastructure, I think that I have the knowledge of to control and to know how to health infrastructure is developed. The basic reason I can use my knowledge into dealing with drugs and primary health infrastructure. Okay. Have you read the newspaper or today? No, sorry. Something was Today I guess. हिंदी बोल लेते हैं जी, जी, सर। क्योंकि वहाँ बाइलिंगुअल होता है जी जी है ना, तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, जो दिक्कत हो आप इंग्लिश में जी No, sir. some terms are there. So जी, because- इंग्लिश हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम लोग आपके कंफर्ट के लिए जी। करते हैं। तो आपने PSIR रखा है ना? जी सर। ठीक है, कुछ चीज बताइए, बेसिक चीज बताइए इसमें कि पंसिल जो हमारा था जी, सर। क्या है बेसिकली? सर पंसिल ट्रीटी 1955 में भारत और
चाइना के बीच में डील साइन हुआ था, जिसमें 5 मेन मुद्दे रखे गए थे कि किसी भी टेरिटोरियल इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस था, म्यूचुअल कोऑपरेशन था, और फ्रेंडशिप आगे लेकर फ्रेंडशिप बढ़ाना था। पंसील ट्रीटी सर आपका एरा जब वो जो गुजरात सिद्धांत है वो क्या है? सर मुझे जितना ध्यान आ रहा है ये नॉर्थ ये ईस्टर्न ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, वो अलग अलग चीजें हैं। ये जो हमारे प्रधानमंत्री थे जी साइकिल हाँ उसमें चर्चा करेंगे इस पे क्या है। अब कुछ आप बताना चाह रहे थे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में ना? जी अच्छा ये बताइए कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पहले जो था पहले की पॉलिसी में क्या अंतर है? सर पहला जो पॉलिसी था नेबरहुड पॉलिसी, उसको वैसा ही पॉलिसी था पर ज्यादा ध्यान रखकर कि लुक ईस्ट में कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, और बाकी जो हमारे नेबर कंट्रीज है थोड़ा सा एक्सटेंड होके और साउथ एशिया में और अपने आप को डेवलप करना। मतलब किस तरह का हुआ? ठीक है सर इसमें एक तो बताइए 5-7 सालों में क्या क्या रिसेंट चेंजेस आए? सर एक तो हम बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंपेयर टू सार्क, क्योंकि वो देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का एक टसल ग्रुप बनकर रह गया है, तो हम बिम्स्टेक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। साथ साथ में आसियान में भी भारत जुड़ मतलब एज ए नॉट रेगुलर पार्टनर पर एज ए ऑब्जर्विंग में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण हमारे जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से अच्छे इकोनॉमिक कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में भारत और ने बहुत सारे डील साइन किए तो मोटर ट्रांसपोर्ट, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश को लेकर, जिसके कारण हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा, जिससे हमारा टेरिटोरियल, म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को भी फोकस किया जा रहा है। कुछ समय पहले इंडिया यूएसए के जो रिलेशन था है ना और मजबूत हुआ है कोविड में। दूसरी तरफ देखेंगे कि चाइना के साथ यूएसए का जो रिलेशन है बिल्कुल खराब स्थिति में, क्या वजह है? सर चाइना बहुत ही प्रोटेक्टिव पॉलिसी को लेकर बहुत आगे बढ़ती है। ये पूरा मेरे हिसाब से जो गेम है कि अपने आप को हेजिमनी प्रूव करना पूरे जियो पॉलिटिक्स में, यूएस एशिया प्राइवेट पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है और एशिया में अपना हेजिमनी को बढ़ाना चाहती है। खासकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए भी यूएस अपना एक ब्लू डॉट नेटवर्क पॉलिसी एशिया में इनिशिएट किया है, जिसमें इंडिया का रोल बहुत प्ले है। रिलेशनशिप जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को सुपर पावर प्रूव करने का, और इसी के बीच में दोनों के बीच में कुछ विवाद बताइए। कोविड लेके भी कुछ हुआ? कोविड को लेकर सर ये माना जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक WHO का रिपोर्ट नहीं आया कि एग्जैक्ट कोविड का स्टार्टिंग जो ओरिजिन बोला जाए फ्रॉम लैब है या मैनमेड वायरस है, जिसको लेकर उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने ट्रंप ने इसे चाइना वायरस बोल दिया था। वायरस को लेकर हमेशा तो चाइना को लेकर यूएस हमेशा टारगेट करने की उन्हीं के कारण। आपको क्या लगता है कि अब आगे ऐसा कुछ हुआ था? सर ये तो पता है कि वुहान में ये वायरस वहीं से डेवलप हुआ, लेकिन इस पे अभी जवाब देना मुश्किल है कि ये मैनमेड वायरस है या किसी भी एनिमल से या बायोलॉजिकली नेचुरल क्रिएटेड या नेचुरल क्रिएटेड है, हो सकता है। अच्छा यूएसए WHO से अलग हो गया है? यस सर। उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत अच्छी संस्था है, पुरानी और अच्छी संस्था थी। सर इसमें बोल सकते हैं कि WHO में सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर यूएसए था कंपेयर टू अदर ग्लोबल नेशंस, लेकिन WHO के सिर्फ कोविड के समय भी ये इन पे एक ब्लेम नहीं लगा था कि इन्होंने लेट रिएक्शन दिया या शुरुआत में ही एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बोल सकते थे। सार्स को भी देखा जाए तो उस समय भी अफ्रीका में ये जो वायरस फैला था उस समय भी WHO का अप्रोच थोड़ा सा स्लो था, यूएसए का ऐसा मानना है। यूएसए एक बहुत बड़ा नेशन है, एक बड़े प्लेटफॉर्म से निकलना एक बहुत ग्लोबल के लिए बहुत चिंताजनक बात होता है, लेकिन ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अब जो नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, फिर से WHO में अपना मेंबरशिप अप्रोच करने आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो कुछ ये बताइए, थोड़ा अलग चर्चा करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो क्या है? सर क्योटो प्रोटोकॉल
basically for environment, to control में ख्याल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कुछ होता है इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हुई थी जो आप देखिए एक माइल्ड स्टोन है। कुछ याद आ रहा है? अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई ये नहीं है। कुछ हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये बताइए कि मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का इंडिया में जो है इम्पैक्ट खासतौर से नॉर्थ इंडिया में क्या होगा? सर नॉर्थ इंडिया का अगर ज्योग्राफिकल सिनारियो देखें तो वहाँ जैसे खासकर दिल्ली एरिया से अगर ऊपर और आगे बढ़ते हैं तो ज्यादातर वहाँ इसलिए पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग का इसलिए इफेक्ट है, वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर है जितना मुझे समझ में आता है, जिसके कारण हम कुछ और चर्चा करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया में देखिए ये मैप इंडिया का, आप देखिए इधर के जो स्टेट है वो काफी विकसित है ना, इस साइड का इवन हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन क्षेत्र भी ले लीजिए, और इधर का बिहार मिडिल यूपी से इधर जाते हैं, ये बड़ा पिछड़ा हुआ उड़ीसा वगैरह। क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसके तो रीजन बोल सकते हैं सर ज्योग्राफिकल, बहुत सारे उस ज्योग्राफिकल में बहुत सारे रीजन आ जाते हैं। बताइए जो आपको मेन लगता है। सबसे बड़ा इधर जितने भी हम अगर ईस्टर्न इंडिया की तरफ देखें तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, खासकर वेस्ट यूपी से लेकर बिहार बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक है। पॉपुलेशन के कारण फिर बहुत सारे सराउंडिंग प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, फिर माइग्रेशन, इंडस्ट्री का नहीं होना कंपेयर टू अदर डेवलप्ड स्टेट्स। बिहार यूपी में वेस्टर्न यूपी से लेकर यहाँ फ्लड का बार बार आना, रिकरिंग ऑफ फ्लड्स है, माइग्रेशन हो गए, एजुकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता, और खासकर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी अपडेटेड की बात आई, जब उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए, वो टेक्नोलॉजी इस पार्ट में, इस बेल्ट ऑफ इंडिया में नहीं पहुंच पाई। अच्छा, आप बिहार से भी हैं, जिस बिहार में देखिए प्राकृतिक संसाधन तो है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है जी सर, बट इसके बावजूद क्या वजह है कि बिहार औद्योगिक रूप से ले लीजिए पिछड़ा हुआ? जी सर, ये पिछड़ा हुआ हम तभी जब 2000 में बाइफर्केशन ऑफ बिहार हुआ, जो भी रिच रिसोर्सेज थे वो तो झारखंड अलग हो गए जी सर, उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे सर संसाधन हमारे, लेकिन हम जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे ज्यादा डिपेंडेंट है और हम लोग उसी को आगे बढ़ते रहे। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे को बहुत फायदा हुआ, हमारा एग्रीकल्चर में बहुत डेवलप हुआ, लेकिन समय के साथ हमेशा एक ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। वो फोकस उस समय कंपेयर टू अदर स्टेट्स नहीं हुआ। अब कुछ सालों से इंडस्ट्रियल पैकेजेस लाए जा रहे हैं, इंसेंटिव पॉलिसी लाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन माइग्रेशन के कारण हम वो रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते, जिसके कारण एक पिछड़ा में हम पीछे जाते जा रहे हैं। सर कुछ चीज और बताइए कि 91 में उदारीकरण हुआ, हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा, कृषि में क्या पॉजिटिव आया इम्पैक्ट? सर कृषि में हम बाहरी नेशन के लिए खुले, जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बना कि हम डिपेंडेंट से फिर हम एक दूसरे को वो देने लगे, कि हमें ट्रांसफॉर्म करने लगे कि हम आप किसी देश को एग्रीकल्चर कि हमारे वर्ल्ड के देशों से जुड़ा हुआ, और हम एक जी सर। और बताइए तीन चार। दूसरा एग्रीकल्चर को लेकर सर, हाँ फोकस एग्रीकल्चर, फिर टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आने लगी कंपेयर टू अदर स्टेट्स, जो भी जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन की टेक्नोलॉजी आई, हाइब्रिड सीड्स की टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल प्ले होने लगा, क्योंकि हमारे नेशन से हम ओपन मार्केट से बड़े देशों से जुड़ने लगे, वो साइंस टेक्नोलॉजी हमें वेदर फोरकास्टिंग में यूज होने बताया। और बताइए कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन जो लग रहा है आपको कि 91 के बाद? एग्रीकल्चर के साथ में एलाइड सेक्टर्स को भी बहुत उसके कारण चेंजेस आए, डेयरी फार्मिंग में आया, हॉर्टिकल्चर में आया, उसके बाद हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे बढ़ने लगे। तो ये जब ओपन मार्केट शुरू हुआ तो हम और चीज में नेगेटिव बताइए क्या हो? सर नेगेटिव है कि कुछ जिसमें हम WTO से जुड़े, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर में कुछ इश्यूज आते थे कंपेयर टू अभी आपने जिक्र किया कि
हमने विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर के कारण। जी सर। और उसमें WTO 95 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी सर। तो आप तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे WTO में कुछ देशों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर में जो सब्सिडीज हम अपने फार्मर्स को देते थे, वो सब्सिडीज के WTO के नॉर्म्स एंड कंडीशन के कारण हम कम देने लगे, जिसके कारण ये इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक हो गया और कुछ होता है। और एग्रीकल्चर अभी जितने ठीक, अभी कॉल नहीं कर पा रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। कुछ चीज ये बताइए, हम लोग इतिहास की चर्चा करते हैं। 1857 का विद्रोह हुआ, समझ पा रहे हैं हिंदी में? जी जी सर, है ना? हाँ, 1857 का विद्रोह हुआ, उसको बहुत टर्निंग पॉइंट माना जाता है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। तो कुछ इतिहासकार का नाम बताइए जो उस समय राष्ट्रीय स्तर के थे, क्या क्या करा उन्होंने? एक सूर्य सेन थे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को उन्होंने कहा था। काल, अगर भारत से बाहर का देखें तो कार्ल मार्क्स ने भी ट्वीट किया था कि जो सरकारी इतिहासकार है कुछ जो चीजों की सूर्य सेन ने जो कहा था, मुझे तो याद फर्स्ट उन्होंने जो उन्होंने ये हमें बताया कि जो टर्निंग पॉइंट रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उससे क्या आप ये कह लीजिए कि क्या प्रेरणा मिली? सर ये कि जो ब्रिटिश मोनार्की या ब्रिटिश एम्पायर था, उसके अगेंस्ट भारत एक समय ये हो गया था कि हम उनके जो विद्रोह था उनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। एक यूनिटी फॉर्म हुई थी और एक नेशनलिज्म, एक तरह का एक पूरा माहौल बना था पूरे भारत देश में, ना कि सिर्फ मेरठ में या यूपी में, ये पूरे भारत में एक आपकी सत्यों को, फैक्ट्स को रखा। और क्या हुआ? उसके बाद से बड़े बड़े लीडर्स आगे आए। उसके बाद कुछ साल के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण एक हम अपनी बातों को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहुंचाने लगे। बहुत सारे क्रांतिकारी हर प्रांत में बने हुए जो ब्रिटिश का नाम सुना होगा आपने? जी सर। लॉ बताइए कुछ उनके बारे में, क्या क्या सुधार किए गए? लॉ का एग्जैक्ट सर ध्यान नहीं आ रहा। लॉ प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। और अब हमें गांधी जी ने महिलाओं को कैसे जोड़ा स्वतंत्रता संग्राम? सर उन्हें चंपारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही ये शुरू हो गया था, महिला को लेकर ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल में जोड़ना, खासकर महिला को आगे रखना। महिला जो उनके चंपारण सत्याग्रह के बाद जो आगे बढ़ी, उनको लेकर के महिला आगे लीड करे, जिसके कारण आगे जाके बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और वर्ल्ड बैंक दो वित्तीय संस्थाएं जिस चुके हैं। बिहार में कैसे मदद मिलता है? सर मेरे हिसाब से ये एक पैरामीटर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जाती है, जो मॉनेटरी सपोर्ट IMF या वर्ल्ड बैंक जो देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है। तो बिहार कैसे लाभ लेता है? बिहार क्या लाभ मिलता है? ठीक है, वो प्रोसेस है, आप बताने की कोशिश करें, बट बिहार में क्या फायदा? सर बहुत सारे योजना में IMF और वर्ल्ड बैंक पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर डेवलपमेंट। जैसे अभी दीघा ब्रिज जो बना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया। बिहार की कुछ योजना है जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने पैसा लगाया, जैसे 7 निश्चय प्रोग्राम हो गए, जल जीवन हरियाली मिशन। IMF ने लगाया या वर्ल्ड बैंक ने लगाया? क्लियर कीजिए। सर मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक ने लगाया। इस दोनों में बेसिक क्या अंतर है, IMF और वर्ल्ड बैंक? आप तो एक्सपर्ट हैं ना। अब एक दो हम लोग और चर्चा करते हैं, और फिर जैसा आपने ये डाला है, फर्स्ट क्या रखा है आपने? BS। उसी विलेज का डेवलप करना हो, वहाँ पोस्टिंग हो आपकी। जी सर। क्या प्राथमिकता है? सर प्राथमिकता जो बेसिक एमिनिटीज है, फूड, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, उस पर पहले ध्यान दिया जाए। हम लोग समाप्त करते हैं यहाँ से। आपके अच्छा, ठीक है। फर्स्ट आई गिव यू द फीडबैक। सिटिंग पोस्चर, फर्स्ट थिंग यू नीड टू इम्प्रूव। ठीक है। मूविंग योर हैंड्स, टू मच मूवमेंट इज इन योर हैंड्स मूवमेंट, दिस शुड बी कंट्रोल्ड, because whatever you want to speak, you need to be doing it from your mouth. Then some of the answers were wrong. I asked you about why it is known as the trade war. See,
China is basically a production house. Many things, very cheaper things it produces and it gives to the world. And the price difference is the main entity there. That is why it is known as the production house. The trade is the basic strength of China, which is it is either with India, either with South Asia. You see, lot of trade has been done. So if that trade becomes crumbled, then China will be the utmost level because the flow of the economy will again dissolve. So last year also we have seen that during Deepavali, Indian people pledged that Chinese goods will not be imported, neither it will be used. So this was done to curb the trade. Again, coming to I asked you about Maligan and Bennigan. Maligan is cancerous, Bennigan is non-cancerous. Being a beef farmer, you should know this. Then I asked you about hydrochloroquine. It is a basic drug because efficacy was seen that lot of COVID cases were controlled due to this drug. Again, remdesivir, very much the lungs. The COVID virus affected the lungs. At the appreciation level, you have seen that how the 25 parts were divided and what is how much part has been divided. This was the report which was coming out. So for making the lungs less effective, remdesivir was given, or for again giving sustenance to the lungs, remdesivir was used. Now coming to again I explained you Australian Open and US Open. Major difference, it is the first Grand Slam which is the Australian Open and the last Grand Slam is the US Open. World Cup 82 was the 8 wickets win was again. I haven't asked you much question about Dhanbad. It is also known as the coal capital of India. Yes, sir. Coal capital of India. So it might be possible because we have very constraint, we have time limit. So it may happen that most of the questions will be asked from coal, its derivatives, what is the importance of coal, why it is known as the coal capital of India. Dhanbad is on the main line, on the railroad line. So it has its importance, and also from mineral point of view, it is very important. So you, as you have studied 4 years you have spent there as an engineer. Engineering is Schooling from schooling also from Dhanbad. Okay, fine. So this you may be okay. Lal Koti is famous for administrative purpose. Read about it. Why Lal Koti is famous in Samastipur. More or less, you are confident and first think and then speak. Once the question ends, you start speaking. You can take a pause. You can recall what points you need to know, and always try to answer question point wise. Suppose you may regain 4 points. After 4 points, you may stop again. The next member will ask the question. Point wise will give you extra marks in your interview. देखिए सर ने तो बताया ही बहुत अच्छा कि जैसे सर का कहना है कि जब आप पॉइंट वाइज देंगे तो समय कम लगेगा। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कंफर्ट है ना। कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी में इंटरव्यू दें। You fumble a lot in English. हिंदी अच्छा है और इस पर I feel so that you तो सर बाइलिंगुअल यूज कर सकते हैं, मिक्स बिल्कुल मिक्स यूज कीजिए। एकदम कोई फ्लुएंसी मत रखिए कि इंग्लिश में बोलिए जिसमें आप कंफर्ट है। ठीक है, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ jargon, लॉट ऑफ फंबलिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग, सो यू कैन यूज। बोर्ड में अक्सर क्या हो रहा है, आपने पहले में इंटरव्यू दिया था, पहला ठीक है। बोर्ड में जैसे 64 में लिखा होता है, कुछ नंबर हिंदी से होते हैं, कुछ इंग्लिश से। अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है, कंफर्ट है इंग्लिश में बताएं, हिंदी में बताएं। इससे क्या होता है, एक अच्छे प्रशासक में सारे गुण होने चाहिए। गांव में शासन करना है तो वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में हिंदी अच्छी है, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में आप बात करेंगे कैसे लोग समझेंगे। तो एक अच्छे प्रशासक का तो गुण है, तो वो चीजें हैं। मैंने कुछ महसूस किया, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, मैं पॉजिटिव बात कर लेता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो पकड़ अच्छी है कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह आप थोड़े लैक में, तो मैं कमी बताऊंगा एक है, तो थोड़ा सा उस पर देखना होगा। मैं अभी आपको रिटर्न करवा दूंगा क्या क्या कमी है। हिस्ट्री मुझे कमजोर है बिल्कुल, हिस्ट्री है ना कमजोर है, ऑनेस्टली बताइए। हाँ सर, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे आपने वो मैं लॉर्ड कर्जन को देखिए, लॉर्ड कर्जन पे हुआ आपसे 1857 का बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो गए। कंपनी के बाद जो कंपनी रूल था उसके बाद सर वो अगर पॉलिटिकल में देखा जाए, देखिए बात क्या है कि प्रेशर होता है ना। सर वो लिखने के लिए हो तो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। 1857 एक ऐसा टॉपिक है, 10, 12 सब बच्चे जाते हैं,
क्योंकि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो काफी उलझाव हो या आपके थॉट्स को इसमें वो सिंपल सा जो ही है, आप जानते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे फीडबैक में। एक लॉर्ड कर्जन, अब जब एक गलती पता लगती है तो हमें उस पर सारे फोकस करना चाहिए, टाइम इनफ है आपके पास। लॉर्ड कर्जन हो गया है ना, लॉर्ड डलहौजी, देख रहे हैं ना, लॉर्ड केरी, इस तरह का बुक्स में देखेंगे गवर्नर जनरल का जो मेन है, जो एक टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको उससे रिलेटेड क्या होगा कि वो उनके द्वारा जो काम किए गए ना वो भी आपको कहीं ना कहीं फैमिलियर कर देगा कि हिस्ट्री के। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री में पूछे, क्योंकि जो बोर्ड होते हैं उसमें हर एक्सपर्ट होते हैं, तो हो सकता है कुछ भी हो अनसर्टेन। कई बार हम लोगों का क्या होता है, यहाँ से 60% क्वेश्चन रह जाता है, लगभग हमने 800 से ऊपर इंटरव्यू ले रखा है अभी, पिछले 64 पे करते हैं। तो अब इतने आप लेंगे तो बहुत सारे रह जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि अभी कल आई थी यहाँ पे यूट्यूब पे राजस्व लेकर आई थी, तो अभी हमने दक्षिण बिहार की चर्चा की इंटरव्यू के दौरान, कैसे एग्रीकल्चर में करेंगे, एग्जैक्टली उनसे आया था और वो लाइक कर गई थी। तो जब हमने फीडबैक जैसे आपको दे रहे हैं तो बातचीत में उन्होंने बताया कि अरे सर यही क्वेश्चन आया तो मैं लाइक कर गई। तो एक संजोग है महज। तो क्या होता है कि हम कुछ पॉइंट आउट हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस पर जो कमी उभर के नजर आती है। ये तो पहली मुलाकात है, कुछ हम लोगों का ऐसा पॉलिसी होता है कि उस पर प्रेशर बनाए कैंडिडेट पे और रिलीज करें, प्रेशर थोड़ा सा हैवी डालें ताकि वहां बहुत रिलैक्स महसूस करें। तो कुछ चीज लगा हुआ है कि मैंने हिस्ट्री छोड़ दिया देख करके, ज्योग्राफी भी छोड़ दिया, अब आप WHO के बारे में नहीं बता पाए मुझे अच्छे से, और आप वो मुझे ऐसा नहीं कि, और गुजराल सिद्धांत बहुत इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जिस समय पढ़ा था यही तो मॉक इंटरव्यू का यही है कि आपकी कमियों को उजागर करना और उस पर फिर आप क्या वर्क करके आते हैं। अगले बार देखेंगे क्वेश्चन जो है नेचर बदला हो जाएगा उसका, वहाँ यानी इसका मतलब है पेंसिल, ये सार, जितनी चीजें हैं, इप्सा, ब्रिक्स, सारे पर फोकस करना है। पेंसिल को भी बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि आके आपके पॉइंट टूट गए थे। तो वो हो गया। देखिए कृषि एग्रीकल्चर का उदारीकरण पे तो आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है, और ऐसे भी जाना चाहिए जीएस में। पॉजिटिव पॉइंट जानिए, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट कृषि होता है ना, अनुबंधित कृषि, वो आपको बोलना था। वाणिज्यिक कृषि होता है, चाय बागान वगैरह के बारे में बताना था, कैसे किसान सुसाइड कर रहे हैं उस चीज का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछा गया था। कहीं ना कहीं बायोटेक का जिक्र आना चाहिए था, वो भी लैक हो गया। WTO के प्रति एकदम निगेटिव दृष्टिकोण था, उसको हम ऐसे कर सकते हैं जहां से कुछ पॉजिटिव लाभ जो विश्व की अर्थव्यवस्था कनेक्ट बता रहे थे जुड़ाव, तो वहीं से कुछ डिस्प्यूट की जो बात है वो अपनी बातों को पॉजिटिव रखते हुए हम निगेटिव की ओर बढ़ेंगे। उस पर भी थोड़ा सा ये हुआ है। और कुछ चीजें और वर्ल्ड बैंक और IMF में बेसिक अंतर तो जानना ही चाहिए, बहुत बेसिक से। कई बार प्रीलिम्स में भी पूछता है वो बिहार में कैसे है। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए क्या हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, महिलाओं के स्वास्थ्य हो सकता है, बिहार की हम बात कर रहे हैं। कई बार आप देखिएगा सड़क पे भी होता है, रोड वगैरह पे होता है, जो इधर हो रहा है उसी चीज को इधर कन्वर्ट कर देना है, एक अप्लाई करना है। बिहार से जोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। प्रोटोकॉल का जब 97 में हुआ था उसको थोड़ा सा और करना है, वहीं से सारा देखिएगा मेन चीज हुआ, थोड़ा देख लेना है। अगर वो बोर्ड पूछ रहा है उससे रिलेटेड सारा देख लेंगे, पेरिस क्या हो गया, जोहान्सबर्ग में क्या हुआ, अन्य चीज ये सब करना है। कुछ मैं आपको होमवर्क दे, तो अभी इंटरव्यू में टाइम है आपका, आप करके आए और उसके बाद क्वेश्चन प्रिपरेशन करें। और उस दिन कोशिश रहेगी एक नंबर और रहेंगे, 50-60 क्वेश्चन आपके वो होगा विभिन्न सेक्शन। हिस्ट्री पे वर्क करना है। हिस्ट्री में क्या करना वो बताते हैं। बिहार से जुड़ी हुई मेन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय, मतलब दोनों कंपेयर कर लीजिए, एक ही चीजें हैं। बिहार के कुछ क्रांतिकारी का नाम जो विभूति, मतलब जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, SP सिन्हा है, ये सब 4-5 फीमेल से जुड़ो। सचिवालय गोलीकांड वगैरह हो तो वो थोड़ा सा देखना है बस, क्योंकि आपको पढ़ते ही है, बस उसको देखना है, रिकॉल करना है। उस पर काम कीजिए हिस्ट्री में। गांधी जी के बनाइए, जैसे आपसे जोड़ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि अच्छा गांधी जी का रिलेवेंट क्या है, तो प्रासंगिकता अभी के समय में उनके जो विचार है क्या है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है ना, जा सकते हैं उस पर देख लीजिए थोड़ा सा। जवाहरलाल नेहरू इस तरह से 2-4 वो देख लीजिए हिस्ट्री पे।
ज्योग्राफी में आ जाइए किस पे काम कर रहा है। पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट पर जितना है वो वर्क के भी आगे कमी आपकी होगी। मैंने आपसे पूछा था राज्यों का इधर का विकसित है, इधर विकासशील, उसके में भी वो कुछ नहीं बता पाया। बिहार की कुछ समस्या देख लीजिए, फ्लड वगैरह का है, औद्योगिक पिछड़ा था, क्वेश्चन पूछा, कुछ पॉइंट्स तो बताया लेकिन टूट गया। कुछ चीजें पॉजिटिव डालिए ना कि सर औद्योगिक डालेंगे, अब जो सरकार की योजना है, पीएम मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, इसके काफी विकास हो, पॉजिटिव इनपुट कीजिए। निगेटिव बहुत चालाकी से जो है निगेटिव को बताते हुए पॉजिटिव दिखना चाहिए, कंक्रीट पॉजिटिव है, भरा हुआ एनर्जी से। अगर कुछ गलती भी करते हैं तो कंसिडर वो करेंगे कि आगे ट्रेनिंग के दौरान बेहतर कर पाएंगे, वो एनर्जी होना चाहिए, है ना। तो और हो गया आपका, और क्या था आपका, IMF वगैरह लिख लिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO पे वो डिसीजन आपसे लेना चाहेगा, आपका सब्जेक्ट है तो डिसीजन लेना चाहेगा, वहां बच नहीं सकते। जैसे अभी आपने बचाव की कोशिश की थी, मैंने चाइना में घेरा था तो वहां से वो ये करते, लेकिन वहां हो सकता है वो कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ दे आपसे, इनकाउंटर करते, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। और कुछ बेसिक चीज पे काम करके आइएगा। बिहार में पॉवर्टी क्यों है, महिलाओं की स्थिति खराब क्यों है, कम उम्र में विवाह क्यों होता है, इस तरह की ग्राम पंचायत से अन्य चीजें देख आइए, हम लोग उसको पूछते हैं। आज का सबने न्यूज पेपर पूछा था, न्यूज पेपर में 2-3 न्यूज था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में था, ठीक है, वो सारी चीजें न्यूज था। उसके बाद फिर ओलंपिक्स और उसका न्यूज था, अभी गोल्ड के लिए वो वर्ड ही नहीं, ठीक है, सिल्वर में मिला था ना, तो उनको गोल्ड के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइनीज किसको मिला तो डोपिंग चार्जेस, तो ये उससे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये कुछ, ठीक है। और बी फार्मा है तो बहुत ज्यादा मेडिकली आपको यूज किया जा सकता है। बायोटेक का जिक्र कीजिए, जब आप इस क्षेत्र से, बायोटेक का तो बहुत सारा बायोटेक का है, लेकिन वो बायोटेक बहुत सिलेक्टिव वे में पड़ा है। एग्रीकल्चर में तो यूज किया जाता है ना, एग्रीकल्चर में अगर मैं ग्रेजुएशन का अगर उस पर बात करूँ तो उस पर बोर्ड तो पूछेगा ही पूछेगा कैसे क्या बनता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ यूजेज है इसके, तो वो तो आपको देखना होगा। थोड़ा सा आप वो सब देख लीजिए, टिश्यू कल्चर वगैरह क्या है, क्लोन क्या होता है, जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, DNA से जुड़ा हुआ बहुत सारा, मतलब उस डायमेंशन में जाए जो आम लोगों से जुड़ा हुआ चाहिए अक्सर उस डायमेंशन में। आइए उस दिन हम लोग 50-60 होपफुली क्वेश्चंस करते हैं जो विभिन्न सेक्टर में देखना चाहिए, थोड़ा प्रेशर और थोड़ा सा प्रेशर में आपको डालेंगे। तो ये जो आपने कहा इंग्लिश, तो बाइलिंगुअल कैसे शिफ्ट करें, मतलब कि शुरुआत में उनसे जाके परमिशन लेके या बात करने के बीच में, जैसे उन्होंने, मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया, आप इंग्लिश में स्टार्ट, बस उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया, आप हिंदी में स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन पुट ऑन हो रहा है, सपोज इंग्लिश में भी हो रहा है, तो अगर मैं इसको बाइलिंगुअली अच्छे से आंसर कर सकता हूँ तो मैं बाइलिंगुअली आंसर करूँ। तो मैं मतलब अपने आंसर के देते समय शिफ्टिंग शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स तो आप, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बात की, आई अंडरस्टैंड है कि वर्ड्स आप हमेशा इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। अब देखिए उसी को यूज किया मैंने हिंदी में, लेकिन IMF मैंने इंग्लिश यूज किया, वर्ल्ड बैंक इंग्लिश यूज किया, तो बस वही तो नॉर्मल प्रक्रिया है। तो बस आंसर को कितना ब्यूटीफुली आप आंसर करते हैं, मतलब क्वेश्चंस को आप पॉइंट वाइज क्वेश्चन, आज 26 है ना, एक 28 को मेरे ख्याल से होना चाहिए आपका इंटरव्यू, जहाँ पर होगा, फिर 2 दिन वर्क करेंगे, तो मीन्स तो है नहीं आपका, मीन्स नहीं है, 30 हो जाएगा सर, दूसरा 30 हो जाएगा। आज कितना तारीख हो, आज 26 है, एक 28 को कर दीजिए। हाँ 28 को एक लिखिए, उसी अनुसार से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर 2 दिन का गैप इनको दे दीजिए, 29 और 30, 1 तारीख को एक कर लीजिए, तो 4 को बैंक करेंगे, 4 को चलना होगा, तो 3 को एक और 31 को लीजिए ना सर, 31 बहुत गैप है, 2 दिन बहुत सीनियर, हाँ, ठीक है, 31 हो गया, 31 और एक लास्ट इंटरव्यू इनको 2 को, 4 हो रहा है ना इनका, 28, 31, हाँ, इसमें आप तकरीबन 100-150 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 अगर हम लोग कर लेते हैं, मैम भी बैठती है यहाँ पे, हाँ साइकोलॉजिस्ट है वो, तो क्वेश्चन कई दफे लोग बिहार से भी क्वेश्चन आता है, बिहार से जुड़ा हुआ है, एक आध बोर्ड में आप देखेंगे अभी बिहार फोकस हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा, जो लेंगे काफी ज्योग्राफी फोकस हो जाएगा, तो ऐसा कोशिश हम लोगों का रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कम से कम आपका प्रेशर लेवल यहाँ हम रखेंगे, वहाँ प्रेशर लेवल यहाँ रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगली बार आप देखेंगे बोलने की आपको कोशिश, प्रश्न कम रहेगा, बोलवाने की हम थोड़ा मिरर प्रैक्टिस कीजिएगा,
मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा और एकदम दिमाग में ये चीज रखिएगा, आई डू नॉट हैव टू मूव माय हैंड्स। ठीक है, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है, मिरर प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है, इसको कीजिए, नंबर अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके बोलने में कॉन्फिडेंस दिखता है, उस कॉन्फिडेंस में अगर आंसर एकदम टू द पॉइंट हो तो फिर बहुत अच्छा और खुद देखिए ना, 100-200 क्वेश्चन का आपने बोल लिया बोर्ड पे, है ना। और जो मैम बैठती हैं थोड़ा सा वो साइको भी देखती, मतलब साइको आपके एक्टिविटी, अच्छा, जैसे जैसे टेम्परामेंट चेंज हो रहा है आपका, जैसे जैसे बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर रहे हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि वो आपको बताएंगे, वो आपको बताएंगे। इतने सीनियर है और इतने एक्सपीरियंस है बोर्ड वाले कि द वे यू एंटर एंड सिट ऑन द चेयर, दे विल जज यू दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। सर हम लोग भी इसलिए जो मैम यहाँ आती हैं, बुलाएंगे अगली बार इसी वजह से, ये कुछ आपकी बेसिक चीजें जहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है उनके। तो ये जैसे मैंने स्पोर्ट्स में लॉन टेनिस लिखा है, तो बहुत लोगों को लगता है कि मैंने हवाई में नहीं होता कि थोड़ा ये, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, जहाँ जाकर तैयारी किया हूँ, तो हमेशा क्योंकि आईएसएल एनएक्सी का स्कूल हमारा आईएसएल, तो आप समझ रहे हो कोर्ट होता है, वहाँ हम लोग खेलते थे, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन उससे हमेशा बहुत लोगों को लगता है कि पैनल में कि नहीं लॉन टेनिस लिख दियो तो ये वही चीज होती है कि बहुत कोई है ना कि मतलब यहाँ बिहार में होता होगा कि वैसा कि बहुत कोई सोचता होगा कि सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। दैट इज व्हाई आई आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग वो क्वेश्चन तो मैं कि मुझे लगा कि वो तो मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके भी फ्रेंच विंबलडन यूज, क्योंकि मैं पिटसेट ब्रास अगर ये हो गया बहुत बुरा मानेंगे, क्योंकि ये चीज है ना, हैंड्स मूविंग क्या होता है ना कि क्यों आपको ये बोला जाता है कि यू व्हेन यू आर मूविंग योर बैठने का एक तरीका, हाँ जैसे आप बैठे हैं बैठ ये तरीका है ये विच यू डू विद कैजुअल टॉक। ठीक है, फॉर अ फॉर्मल टॉक एंड दैट इज आल्सो व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सीनियर, सी हैव यू सीन द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग, एवरी टाइम आपने ब्यूरोक्रेट को देखा हो वो ऐसे खड़े रहते। ठीक है, कभी भी जो सीनियर मोस्ट सबसे फ्लैग जब पोस्टिंग होती है तो ऐसे करके खड़े रहते हैं ऑफिसर्स, जो सीनियर मोस्ट आईपीएस होते हैं, क्यों गेस्ट है शोइंग रेस्पेक्ट। ठीक है, यही चीज इसीलिए हैंड्स मूवमेंट को हम लोग इसीलिए कहें। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब ये सब चीजों को प्रिपेयर कीजिए, और इसमें थोड़ा सा हम बी फार्मा पे और आपको लेके जाएंगे, क्योंकि बी फार्मा है आपको बहुत सारे और क्यों बनेगी, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। ठीक है, तो वही में हम लोग टेनिस को लेकर लोग बेसिक्स मैंने तो जो खेला हूँ, और मतलब अभी तक 1 महीना पहले तक खेल के आया हूँ, होता कि ये बचपन का ये नहीं कि हवा में लिख दिया कि फ्रेंच ओपन करता हूँ, तो वही है जो आपका आदत है, जैसे वो थोड़ा उस टाइप से ले लेते हैं कि ऐसे लोगों पे मत जाइए, लोगों पे मत जाइए। बोर्ड जो होगा ना वो बहुत बैलेंस्ड होगा, जो आप खेले हैं सब चीज को जानते हैं। बोर्ड इतना ज्यादा वहाँ पे बोर्ड जो है इतना ज्यादा है कि वो आपको जब वे यू टॉक दे विल अंडरस्टैंड वेदर यू आर सेइंग इट करेक्ट और इनकरेक्ट। अब देखिए, हम थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस था, कैसे हमने कहाँ आपको ले गए, किन किन चीजों को पॉइंट ले गए, सब्जेक्ट कैसे कैसे, मतलब आपको पता भी नहीं लगा प्रेशर में, कब आप हिस्ट्री पे आए, कब ज्योग्राफी पे आए, कब पॉलिटी पे आ गए, कब आप इन्वायरमेंट पे आ गए, है ना। कैसे डायवर्स हो, बोर्ड में भी ऐसे कई मेंबर होंगे, और सब पे आपको पैरामीटर को देखने के बाद डिस्कस निकाले ये कमी है, तो आपने एक्सेप्ट किया कि कौन सी। सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल हमेशा। ठीक है, ये बहुत हो सकता है लगातार 4 क्वेश्चन में बोला हमने, कभी इस चीज से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत कीजिए। ठीक, वो 2-3 बार आप दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके लिए। और आज हम लोगों ने आपको समस्याओं को देखते हुए कितना टाइम दिया, लगभग 45 मिनट टाइम दिया है। हाँ, उन्होंने प्राय देखिएगा किसी इंस्टीट्यूट में 15-20 मिनट 22-25 मिनट। पहले तो मैं पटना में बस 2 साल पहले